یہ بات ہے حضرت محمد اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لبیک اللہم لبیک۔ سنا ہے آپ کالے گھر کے چکر لگاتے ہیں، سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ کالا گھر نہیں بلکہ کعبہ ہے، اور مانگنا تو سیدھے اللہ سے ہی چاہیے نا۔ ہر بار جب سیرت النبی کی کتابوں کے صفحات پلٹتی ہوں نا تو کچھ سوال میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مکہ ایک ایسی سنسان وادی تھی جسے اللہ نے اپنے رحم سے بسایا۔ ہم کعبہ کے محافظ ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ ہماری برابری کر سکے۔ مکہ کی سنسان وادی میں وہ دو عاشق کون تھے جو کعبہ کے اندر انسان بن کر گئے لیکن باہر پتھر بن کر نکلے؟ دیکھو انہیں، اللہ نے سچ مچ انہیں پتھر بنا دیا ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے حد کر رکھی کا مکہ والوں کا ایسا کون سا گناہ تھا جس نے زمزم کے پانی کو مکہ سے کئی سو سالوں کے لیے غائب کر دیا؟ زمزم کے پانی کے بغیر یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ میرے خیال میں ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ آج میں آمرین آپ کے سامنے سیرت النبی کے وہ نایاب صفحات کھولوں گی جو اس دنیا کی غفلت میں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کا پہلا حصہ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ عرب کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، اور کیسے اسماعیل علیہ السلام عرب نہیں تھے، اور کس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے عربیہ کے ویران کینوس پر توحید کا رنگ بھر دیا۔ کیسے ایک لمبے عرصے تک ابراہیم علیہ السلام بے اولاد رہے، اور کیسے ہم مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ آج کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں میں اور آپ مل کر مکہ کا ہزاروں سال پرانا سفر طے کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے مکہ کی قیادت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ ہم ان دونوں عاشقوں کا حال بھی دیکھیں گے جنہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو ناپاک کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ اہم یہ کہ کس طرح اللہ نے مکہ سے زمزم کے پانی کو غائب کر دیا اور کئی سو سالوں تک مکہ پیاسا رہا۔ وادیوں مکہ کی ریت میں ایک نیا سفر لکھا جا رہا تھا۔ کعبہ بن کر تیار ہو چکا تھا، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس پورے علاقے میں قبیلہ جرہم آباد تھا۔ تقریباً 175 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کا نکاح قبیلہ جرہم کی ایک خاتون سے ہوا۔ لوگ ان کی باتیں سنتے، توحید پر قائم رہتے اور اپنے قبیلوں کو ان کے طریقے کے مطابق چلاتے۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا۔ بڑے بیٹے کا نام نابت تھا، بعض کتب میں نبیوت بھی ملتا ہے۔ 1 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو نابت نے کعبہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے بعد ان کے بھائی قیدار اس منصب پر فائز ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قیدار کو کعبہ کا محافظ چنا گیا ہے۔ نبی کے بیٹے کعبہ نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ لیکن یہاں تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تعداد میں کم تھی، اس لیے قیادت ان کی نسل سے نکل کر دوبارہ قبیلہ جرہم کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کو منتقل ہو گئی۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ اگرچہ دینی معاملات، طواف کا طریقہ، صفا و مروہ کی سعی اور حج کے دیگر مناسک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی سکھاتی رہی، لیکن مالی اختیارات جرہم اور ان کے رشتہ دار قبیلہ قطورہ کے پاس تھے۔ آپ کو نہیں لگتا کعبہ کی مالی ذمہ داریوں پر پیغمبر اسماعیل کی نسل کا بھی اختیار ہونا چاہیے؟ دیکھو شازیہ، سب کی مرضی یہی ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان پر بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے قاتورہ قبیلے والے بھی یہاں بسنے آنے والے ہیں۔ ہاں، سنا تو میں نے بھی ہے۔
और ठीक भी है, कातूरा हमारे अपने हैं, जुरहम कबीले की ताकत ही बढ़ेगी उनके आने से। तो हुआ यूं कि जुरहम कबीला जमजम के पानी के पास आकर बस गया, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया, जो कि असल में कातोरा कबीले के नाम से यमन में ऊंट चराने का काम किया करते थे। तो अब इस काबा के पास 2 कबीले बस गए। पहला कबीला जुरहम कबीला, दूसरा कबीला कातोरा कबीला। अब सोचने वाले ये सोचेंगे कि यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तो थे, उनका कबीला भी बसता, लेकिन कबीले तादाद की वजह से बचते हैं, क्वांटिटी में बसाए जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्लें तादाद में गिनती में बहुत थोड़ी थीं, तो वो जुरहम कबीले के साथ ही रहती रहीं और अल्लाह का काम, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम करती रहें। अब यहाँ नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई नबी नहीं आया। उनके बेटे जरूर काबा के मुहाफिज बने, लेकिन उनमें से कोई भी अल्लाह का नबी नहीं था। जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबूवत का सिलसिला चलता रहा। जैसे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ये सिलसिला बिल्कुल रुक गया, कोई नबी नहीं आया। कुरान मजीद में इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से चलने वाले सिलसिले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बन्नु इसराइल के नाम से जिक्र किया है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। तो ए बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद। इसराइल से मुराद क्या है? इस पर इत्तेफाक है, इजमा है, हजरत याकूब का ये लक़ब है। मकतूम के सफ़ा नंबर 62 पर यह जिक्र है कि धीरे धीरे काबा के आसपास की आबादी बढ़ती चली गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्लें यहाँ से वहाँ रोजगार की तलाश में निकलती चली गईं। बस कुछ गन्ने चने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम के लोग काबा के पास रह गए थे, लेकिन वो भी सिर्फ एक रिलीजियस फिगर हेड्स थे। उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी। सारी की सारी अथॉरिटी सिर्फ 2 कबीलों के पास थी, और वो 2 कबीले कौन थे? जुरहम और कातोरा। अब ये दोनों कबीले अपने हिसाब से काबा को मैनेज किया करते थे, और इस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथों से वो सारी पावर, काबा की सरदारी निकलकर जुरहम और कातोरा कबीले के हाथ में चली गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि वो कौन सा खुशबू का सफर था जिसने मक्का को अमीर कर दिया। साथियों, सूरज ढलने वाला है, हम यहीं पड़ाव डालेंगे। जी बेहतर, लोबान ऊंटों से उतार लो। रहीतुल मखतूम के पेज नंबर 64 पर मेंशन है कि करीब 2000 सालों तक जुरहम कबीला यहाँ राज करता रहा। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये 2000 एक आइडिया देने के लिए एक फिगरेटिव नंबर है। असल में आप ये कह सकते हैं कि कई सौ सालों तक वो यहाँ राज करते रहे, और उन कई सौ सालों में इन लोगों के हाथ एक बहुत बड़ा राज लग गया, एक ऐसा राज जिसने उनको अमीर बना दिया। ये था असल में खुशबू के कारोबार का रास्ता, जिसे अंग्रेजी में फ्रैंकिनसेंस रूट कहा जाता है। फ्रैंकिनसेंस बस पेड़ का एक गूंद है, मर भी वही है। अगर आप फ्रैंकिनसेंस को कोयले पर रखें तो पुराने लोग इसकी खुशबू को धरती पर खुदा के होने का सबूत मानते थे। इतिहासकार इस मिस्ट्री को लेकर उलझन में रहे हैं। लुबान, जो आजकल बहुत आम तौर पर नजर आ जाता है, उस जमाने में इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी, क्योंकि ये हर जगह पाया नहीं जाता था। साउथ अरेबिया के यमन और ओमान के पहाड़ों में मिलता था। रूम के बड़े बड़े टेम्पल्स, मिस्र के पैलेसेस, बाज़ंतीनी एम्पायर, हर जगह इस लुबान की खुशबू की कीमत सोने से भी ज्यादा की कीमती थी, क्योंकि उनकी इबादत गाहें, उनके फ्यूनरल्स, ये सब लुबान की खुशबू के बगैर अधूरे माने जाते थे। एक अंदाजे के मुताबिक आज भी रोम के कैथोलिक चर्च हर साल लगभग 50 मीट्रिक टन लोबान इस्तेमाल करते हैं। अब इस मैप को देखिए, नीचे राइट साइड पर जो ग्रीन एरिया है, ये है यमन और ओमान के वो इलाके जहाँ के पहाड़ों में लुबान पैदा होता था, और ये जो येलो लाइन नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जा रही है, ये है फ्रैंकिनसेंस रूट यानी खुशबू का गोल्डन हाईवे। तो पूरा सिस्टम कुछ यूं था कि यमन से, ओमान से ये सारा लुबान ऊँटों के ऊपर लद कर आता है, और फिर ये काफले सैकड़ों ऊँटों की तादाद में लुबान लेकर निकलते और बाज़ंतीनी एम्पायर तक का सफर करते। ये सफर बहुत लंबे और थका देने वाले होते थे, तो उनको रुकने के लिए भी कोई जगह चाहिए थी जहाँ वो आराम कर सकें, अपने ऊँटों को पानी पिला सकें, थोड़ी कमर सीधी कर सकें। सफर ने बुरी तरह थका दिया है, ऊँटों का भी बुरा हाल है। कुछ देर की बात है बस। काबा ज्यादा दूर नहीं, वहाँ जमजम का ठंडा पानी और आराम के लिए महफूज जगह दोनों मिल जाएंगी। चलो तेजी से आगे बढ़ो, सूरज ढलने से पहले हमें जमजम के कुएं के पास पहुंचना है। मक्का यानी ये काबा बीच में पड़ता है, और अरबिया के उस पूरे इलाके में सिर्फ काबा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ जमजम का ठंडा पानी मौजूद था। आस पास छोटे मोटे कुएं थे, लेकिन उनमें पानी सीजनल आता था, कभी आया कभी नहीं आया।
लेकिन जमजम का पानी हर वक्त बहता रहता था। आज भी उसी स्पीड से, उसी क्वांटिटी में बह रहा है जैसे हजारों साल पहले बहता था। तो ये लोग जमजम के पानी के पास रुकते, पानी पीते, आराम करते और वहाँ अल्लाह की इबादत का मैसेज भी सुनते। मुझे एक अल्लाह वाली बात समझ नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। जब उस एक अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो क्यों हम किसी और की इबादत करें? कुछ लोग इस सफर में ईमान ले आते, एक अल्लाह की इबादत करने लगते और कुछ लोग बस यूं ही लूट जाते। लेकिन यहाँ रुकने की वजह से हुआ ये, काबा की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि पूरे अरबिया में उस वक्त हर इंसान को अपनी जान का खतरा लगा रहता। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज आप हाईवे पे निकल जाइए करोड़ों लाखों का सामान लेकर, तो आपको भी हर वक्त खटका लगा रहेगा कि पता नहीं कब लौट मारो जाए पर, क्योंकि मक्का अल्लाह का घर था। वहाँ बैतुल्लाह वाले लोग रहते थे, ईमान वाले लोग रहते थे, तो वो किसी को परेशान नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने काबा को एक रेस्टिंग प्लेस बना दिया, सबके आराम की जगह बना दिया। अब इन सौदागर के आने से, क्योंकि ये अलग अलग मुल्कों से आते थे, अलग अलग कल्चर से आते थे, तो ये अपने साथ खाने पीने का और दूसरी ज़रूरतों का सामान भी लेके आते। अब जहाँ 4 लोग जमा होते हैं वहाँ बाजार भी लग जाता है, तो यहाँ पर छोटा मोटा खरीदो फरोख्त का बाजार लगने लगा। मछलियाँ देखो एकदम ताजी हैं। वाह क्या बात है, हमें कुछ खजूर और आलू चाहिए। हाँ, ये सौदा तो पक्का है। ये कपड़ा चीन में हाथ से बुना गया था। इसे बनाने में पूरे 2 साल लगे हैं। और इस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल कर दिया जो उन्होंने काबा को बनाते वक्त मांगी थी। और जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान लाएं, उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। तो देखा आपने किस खूबसूरती से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को पूरा कर दिया। शुरू में तो यहाँ सब कुछ सही रहा। जुरहम कबीले का वही एटीट्यूड था कि रहीमून खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, काओ से ना दोस्ती, काओ से ना बैर, यानी वो लोगों की मदद करते, लोगों की हेल्प करते, और उसके अवज़ उनके दिल में कोई लालच नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, पीढ़ियाँ बदलती चली गईं, उन लोगों ने काबा को एक टूल प्लाजा बना दिया और फिर ये आने जाने वाले लोगों से यहाँ पर टैक्स वसूलने लगे। अब से सब मुसाफिरों को जुरहम और कातूरा कबीले को महसूल देना होगा। ताज्जुब है, ये क्या कह रहे हैं? ये बात तो कभी सुनी नहीं। ताकि हम आपकी खिदमत और बेहतर तरीके से कर सकें। अगर आपको महसूल देना मंजूर नहीं तो आप कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं। ये बात कुछ सही नहीं लगती। कोई बात नहीं फरमान, महसूल देना हमारी मजबूरी है। और क्योंकि पूरे साल सौदागरों का आना और जाना लगा रहता था, तो देखते ही देखते ये काबा वाले बे इंतहा अमीर हो गए। अब कहते हैं ना कि जहाँ पैसा आता है वहाँ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जोरहम और कातोरा कबीले के बीच प्रॉब्लम्स आने लगी, उन दोनों में एक सिविल वार छिड़ गई है, और आखिरकार ये फैसला हुआ कि जोरहम कबीला उन लोगों से टैक्स वसूल करेगा जो ऊपर की तरफ से आते हैं, यानी जो काफले पेट्रा और गजा से लुबान बेचकर पैसे कमाकर वापस लौटते हैं, वो उन लोगों से टैक्स वसूल करेंगे, और कातोरा कबीला नीचे जाने वाले सौदागर से टैक्स वसूल करेंगे, यानी वो काफले जो यमन से, ओमान से लुबान लेकर गजा की तरफ जाते थे अपना सामान, अपना लुबान बेचने के लिए। तो ये आज के टोल टैक्स सिस्टम जैसा था कि आपको जाना है तब भी पैसे देने हैं, आपको आना है तब भी पैसे देने हैं। रही मखतूम के पेज नंबर 67 पर यह बात मेंशन है कि वो लोग तकरीबन 10% टैक्स वसूल किया करते थे, यानी 10% जाने पर टैक्स, 10% आने पर टैक्स। और इस तरह अल्लाह का घरे काबा 2 हिस्सों में बंट गया। वो जो तौहीद का मरकज था, सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम था, उस जगह को अब 2 कजिन्स कबीले चला रहे थे। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज।